Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Erosion by human activities. Many times erosion of soil take place naturally. A balance is maintained on the earth between the erosion of land and its renewal by natural means. However, human activities have disturbed this balance in many parts of the world. Soil erosion natural भी है और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा भी सॉइल इरोजन हो सकता है। बहुत सारी वर्ल्ड में बहुत सारी पार्ट्स में भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण सॉइल इरोजन होता है। सम ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच हैव मेड द टॉप सॉइल लेयर of the earth weak are faulty farming system, deforestation caused by overgrazing, conversion of land or agriculture purpose, and construction, dam construction and diversion of the natural course of river, and mining activities are just to name a few among the various. Overcultivation of the land, overgrazing by cattle and deforestation for making firewood are the other reason for soil erosion to take place. अब नेचुरल तो सॉइल इरोजन होता ही है, बट ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण भी सॉइल का टॉप लेयर ख़राब हो जाता है। जैसे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। फॉल्टी फार्मिंग सिस्टम का, फार्मिंग सिस्टम में फॉल्ट होना, डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग ऑफ ट्रीज़ ऑन मास स्केल, लार्ज स्केल में ट्रीज़ को कट करना, ओवरग्रेजिंग करना, एग्रीकल्चर पर्पज़ और कंस्ट्रक्शन के लिए लैंड को कन्वर्जन करना, डैम कंस्ट्रक्शन और माइनिंग एक्टिविटीज़ मीन्स खोद काम के लिए उसमें से यूज़फुल मिनरल्स फ्रॉम द ग्राउंड उसको खोदना। तो ये सारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं इसके कारण भी सॉइल इरोजन हो सकता है। ओवरग्रेजिंग बाय कैटल्स और डिफॉरेस्टेशन, फायरवुड के लिए डिफॉरेस्टेशन करना, ये सारी बहुत सारी रीज़न हैं जो सॉइल इरोजन का कारण बन सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ सॉइल. Soil conservation refers to all the necessary methods to maintain the fertility of the soil to improve the productivity of agriculture. The protection of soil against erosion is called soil conservation. It is the judicious use of land for continued and maximum production from the land. It includes all the activities required for controlling soil erosion, management of extra water, conserving natural resources, and judicious use of land for increasing production. Soil conservation means soil को खराब होने से बचाना। तो soil conservation के लिए बहुत सारी ज़रूरी मेथड होती हैं जो कि soil erosion होने से हम उसे बचा सकें। तो सॉइल की फर्टिलिटी के लिए हमें एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहिए। लैंड का यूज़ करके हमें मैक्सिमम प्रोडक्शन करना चाहिए, और तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ के कारण हम सॉइल इरोजन को कंट्रोल में ला सकते हैं। प्रोडक्शन का यूज़ करके, प्लांटिंग मोर ट्रीज़ का यूज़ करके, ये सब के कारण हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। Now we can conserve soil by the following ways. Planting more trees. One of the effective ways of soil conservation is planting more trees, as roots of trees hold the soil firmly and help in the prevention of soil erosion. Soil that is always covered with vegetation has very less chances of getting eroded. ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ को, ट्रीज़ को ग्रो करके हम सॉइल इरोजन से बचा सकते हैं।
क्योंकि हम जितने से ज़्यादा ट्रीज़ को ग्रो करेंगे तो उसके जो ट्रीज़ के जो रूट्स हैं वो सॉइल को होल्ड करके रखते हैं और उससे सॉइल इरोजन से बचा जा सकता है। हम जितने से ज़्यादा पेड़ ग्रो करेंगे तो जो सॉइल के ख़राब होने के चांसेस है वो बहुत ही कम हो जाते हैं, जिसके कारण सॉइल इरोजन से बचा जा सकता है। टेरेस फार्मिंग। There are high chances of soil erosion on hilly areas. Thus, the slopes are cut into steps or terraces to reduce soil erosion. Practice of farming on such terraces is called terrace farming. Due to its unique structure, it prevents the excess flow of water from the surface rapidly. Terracing also gives a stepped appearance to the land and slow down the easy washing out of the surface soil. सेकंड है टेरेस फार्मिंग करना। जो हिली एरियाज़ हैं वहाँ पर सॉइल इरोजन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ क्योंकि वहाँ स्लोप होता है तो स्लोप के कारण जब हैवी रेन आती है तो सारा जो टॉप सॉइल है वहाँ रिमूव हो जाता है, तो उसके कारण वहाँ पर टेरेस फार्मिंग करनी चाहिए ताकि सॉइल इरोजन से बचाया जा सके। टेरेस फार्मिंग का मतलब है मीन्स एक यूनिक स्ट्रक्चर होता है इसमें, जिससे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि स्टेप देखने के लिए मिलती है सीढ़ी जैसे उस लैंड में, ताकि जब रेन पड़ती है तो जो फ्लो ऑफ वाटर है, वाटर का जो फ्लो है वह सरफेस पे एकदम तेज़ी से जाता है, बट जब स्टेप बन जाता है तो स्टेप के कारण जो वाटर का फ्लो होता है वह थोड़ा स्लो हो जाता है, जिसके कारण सॉइल का जो सरफेस है वह वॉश आउट हो जाता है, मीन्स टॉप सॉइल रिमूव नहीं हो पाते हैं। इसीलिए टेरेस फार्मिंग का यूज़ करना चाहिए हिली एरियाज़ में। कंटूर फार्मिंग। प्लॉइंग ऑफ farming across the contour lines of a slope is called contour farming. It reduces the speed of water flow. Contour plowing prevents percolation of water into the soil and easy washing away of soil along the slope. Thus is considered an effective way of soil conservation. Contour farming के कारण भी सॉइल कंजर्वेशन हो सकता है। इसमें आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक लैंड होती है, स्लोप लैंड होती है, उसमें लाइन टू लाइन आप प्लॉइंग कर सकते हो, जिसके कारण जो वाटर का स्पीड है वह कम हो जाता है। तो कंटूर फार्मिंग में पेरिकोलेशन मीन्स जो फिल्ट्रेशन है, वाटर का फिल्ट्रेशन है सॉइल में से, वह उसमें से बचाया जा सकता है और ऐसे स्लोप के कारण उसके जो पार्टिकल्स हैं वॉश नहीं हो पाते हैं। इसलिए ये भी एक सॉइल कंजर्वेशन का वेज है। क्रॉप रोटेशन। फार्मिंग ऑफ अ सीरीज ऑफ डिसिमिलर क्रॉप्स कल्टिवेटेड sequentially is called crop rotation. It helps to improve soil structure and fertility. Continuous cultivation of the same type of crop for long periods leads to the loss in fertility of the soil. Crop rotation means एक खेत में हर साल बदल कर मीन्स अलग अलग टाइप के फसल बोना, उसे क्रॉप रोटेशन कहा जाता है। इसकी हेल्प से जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो इम्प्रूव होती है। अगर हम कंटिन्यूअस सेम टाइप के क्रॉप ग्रो करेंगे तो वह फर्टाइल को कम कर देती है, इसलिए हमें अलग अलग क्रॉप्स को बोनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड embankments. Due to heavy rains, many rivers get flooded and causes lot of damage to the property.
The land near the rivers get washed away. Construction of dam and embankments along the banks of the river prevent the flood and soil erosion. Embankments या डैम को कंस्ट्रक्ट करके भी हमें सॉइल इरोजन से प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि हैवी रेन के कारण बहुत सारे रिवर्स में जब फ्लड आ जाता है तो प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है, तो रिवर के पास में जो लैंड है वह ख़राब हो जाती है, वॉश अवे हो जाता है। तो डैम के कंस्ट्रक्शन या इम्बैकमेंट्स मीन्स बहुत बड़ा रॉक होता है, उसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है जो रिवर के पास में बनाया जाता है, जिसके कारण जब रिवर में फ्लड आता है तो उससे बचा जा सकता है और सॉइल को ख़राब होने से भी बचाया जा सकता है। तो इसके कारण भी सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। सॉइल कंजर्वेशन ये भी एक इफ़ेक्टिव मेथड है सॉइल कंजर्वेशन के लिए।